departmentation. First, organizational structure. Second, flexible. Third, specialization, sharing of resources, coordination, control, efficiency, scope of growth and diversification, responsibility, development of management. And next, first we will see functions of departmentation. There are production function, personal, marketing. There are merits of functions departmentations. Simple and logical basis of creating department, specialization, coordination, training and control, supervision, suitable for stable organization, suitable for small organization. There are some limitations. Overall organization goals, delay decision, coordination, accountability is unsuitable for dynamic organization, complexity, division department. Then we will see division departmentation. There are some merits: better performance, flexible, fast decision, coordination, control, responsibility, efficiency, limitations, coordination, expensive, control. Very good. 26. 26 का सवाल है. Very good. 26. Next, anybody else about a departmentation? Yes, anyone? Sir, can I? Yes, you can. Two types of departmentation, functional and divisional. First one is the functional. In functional, marketing departmentation, finance departmentation, personal departmentation, and production departmentation. And then divisional departmentation. In that, product departmentation, area departmentation, departmentation by time, departmentation by task force, and process or equipment departmentation, customer departmentation, geographic departmentation, and departmentation by size. Very good. Okay. Roll number 17. A division 7217. Yes, sir. Tell me departmentation. Types of departmentation, functional department and divisional department. Functional department में personal department, marketing department, production department and finance department. Divisional department के type product departmentation, process or equipment department, customer department, geographical department, departmentation by time, departmentation by size, departmentation by task force. That's very good. Roll number 17. Roll number 20. 7220. Yes, sir. Tell me the points of departmentation. There are two types of departmentation, functional and division. Functional में product departmentation, marketing departmentation, personal departmentation and finance departmentation. Divisional में sir department by area, department by geographic condition, department by time and departmentation by product. सर इतना ही पॉइंट याद है. डिपार्टमेंट बाय प्रोडक्ट और सर प्रोडक्ट के बाद और क्या आता है? डिपार्टमेंट प्रोसेस, टाइमिंग, साइज, ज्योग्राफिक कंडीशंस और टास्क फोर्स. यस सर. ठीक है. नंबर 7239. ए डिवीजन 39. A division 7239. Come to the mic.
7238. Hello. Yes. Hello. Sir. Functional and divisional in functional production, finance, marketing, personal, and in division product, customer, time, area, size, process, task force. Okay, very good. Next, 7234. Very good. Thanks. Roll number 7234. Yes, sir. Tell me the points. Departmentation. There are two types of departmentation. First, functional departmentation. Second, divisional departmentation. In functional departmentation, there are personal departmentation, marketing departmentation, finance departmentation, production departmentation. In divisional, production department, process and equation, geographical departmentation, departmentation by area, departmentation by time, departmentation by product, task forces. Okay, very good. 34. So as the last lectures, you know about the departmentations and its types. अलग अलग डिपार्टमेंटेशन देखे थे, उसके टाइप्स देखे थे, एडवांटेज डिसएडवांटेज आप लोगों ने सीख लिया था. Yes. Okay. So the today's lecture we will discuss about the delegations of authority. Our today new topic, delegations of authority. कोई मुझे बताएगा delegations of authority का मतलब क्या होता है? Anyone? Will share your experience or share your opinion. Delegations of authority. जैसे कि हम लोग ने सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ा, डिपार्टमेंटेशंस पढ़ा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग पढ़े. जस्ट लाइक दैट डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटी आप लोग को पता है. अपना ओपिनियन बताओ मुझे, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है? बस कोई भी नहीं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा डिस्कशन किया था. द स्केलर चेन, टॉप टू मिडल, मिडल टू लोअर. कुछ याद आ रहा है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में? बस अभी भी किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है. Why you're not replying? If आता है तो यस बोलो, नहीं आता तो नो बोलो. वेट क्यों कर रहे हो तुम लोग? This is the delegation of authority. Roll number 7318. Can you read this delegation of authority? B division 7318. Yes, sir. Delegation of authority read करो. Yes, sir. Delegation of authority. Definition. The delegation of authority is an organizational process wherein the manager divides his work among the subordinates and gives them the responsibility to accomplish the respective task. Along with the responsibility, he also shares the authority, that is, the power to take decisions with the subordinates such that responsibilities can be completed efficiently. In other words, a delegation of authority involves the sharing of authority downwards to the subordinates and checking their efficiency by making them accountable for their doings. In an organization, the manager has several
responsibilities and work to do. So, in order to reduce his burden, certain responsibility and authority are delegated to the lower level. So that is to the subordinate to get the work done on the manager's behalf. As per your point of view, delegation authority का मतलब क्या होगा बताओ? Delegation of authority means like delegation of authority means Is just known मतलब as decentralization here. Delegation of authority का मतलब होता है just like a decentralization. Decentralization का मतलब क्या था? Given the power, given the authority to the lower level subordinates. yes sir. उसी को हम लोग यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन जो पढ़ेंगे, वही जो हमने पढ़ा था डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, वही चीज यहाँ पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. ये तो अथॉरिटीज एंड पावर टू देयर सबऑर्डिनेट्स टू वर्क इंडिपेंडेंटली. ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या है? सेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी एक के पास रहता है, डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी सब लोग के पास आ जाता है, तो उसी को बोलेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. हर एक इंडिविजुअल्स, हर एक सबऑर्डिनेट के पास अपने अपने अथॉरिटीज है वर्क इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए. उसमें कोई रोक टोक नहीं, कुछ रुकावटें नहीं होंगी, कुछ नहीं. वर्क विथ योर इंडिपेंडेंटली. जैसे मैं आप लोग को दिया, मैंने आप लोग को हर एक को काम दिया है, रिसर्च मैथोलॉजी करने का, फील्ड वर्क करने का, हर एक को अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है मैंने. आप लोग को अपने पास अथॉरिटी है, यू कैन गो एंड कलेक्ट द डेटा. आप किसी भी जगह पे जा सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो. यस और नो? दिया है ना आप लोग को डेटा मैंने? हर एक इंडिविजुअल्स को उसको पावर दिए गए हैं, अथॉरिटी दी गई है. तो ये होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपने सबऑर्डिनेट्स को अथॉरिटी देते हैं टू वर्क इंडिपेंडेंटली, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी डिपेंडेंट पर्सन के. यू कैन डू योर वर्क. ये होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. टॉप लेवल किसको देगा अथॉरिटी? मिडिल लेवल को. मिडिल लेवल किसको देगा? लोअर लेवल को. और लोअर लेवल जो वर्कर्स होते हैं, जो ऑपरेटिंग होते हैं, उनके पास अथॉरिटी होती है, काम करके दो. दैट्स इट. The delegation of authority is an organization process wherein the manager divide his work among the subordinate. किसको दे देते हैं? सबऑर्डिनेट को काम डिवाइड करते हैं. and give them responsibility. वहां पे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं to accomplish the respective task. उस टास्क को पूरा करके देने का. along with the responsibility he also share the authority. रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी भी दे देते हैं. यहाँ पे अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक द डिसीजन with the subordinates. Such responsibility can be completed efficiently. अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और आपको पावर नहीं दिया गया है, तो आपके काम करने के जो तरीके हैं, आपका जो काम करने का जो अचीवमेंट होगा, वो थोड़ा कम हो सकता है, वो रिजल्ट प्रॉपरली नहीं आ सकता. लेकिन अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी दे दी गई है, पावर दे दी गई है कि आप जिस तरह से चाहो उस तरह से अपने काम को करके दिखाओ, ये होता है अथॉरिटी पावर. Such responsibility can be completed efficiently. In other words, delegation of authority involves the sharing of authority downwards to the subordinates and checking their efficiency. उनके पास अथॉरिटी दे दी जाती है, उनकी एफिशिएंसी चेक कर देते हैं कि कौन कितना किस तरह से काम करता है. By making them accountable for their doing jobs. ये होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. कुछ फीचर्स देखेंगे हम लोग डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के. Anybody can read the features point wise. यहाँ तक समझा आप लोगों को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मीनिंग? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ पावर भी दे देना, अथॉरिटी भी दे देना. यू कैन डू योर वर्क इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी प्रेशर्स. हम लोग को समझा यहाँ तक? कोई डाउट है किसी को? हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, उसी के बारे में पढ़ रहे हैं. वर्डिंग चेंज है यहाँ पे. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आ गया है, पावर आ गई है आपके पास. यस, 7230 Payal Gelot, read this. Features of delegating of authority. Delegation means gives powers to the subordinate to act independently, but within the limits prescribed by the superior. Also, he must comply with the previous of the organizational policy, rules and regulations. Delegation does not mean that manager give up his authority, but certainly he shares some authority with the subordinate essential to complete the responsibility entrusted to him.
Authority once delegated can be further expanded or withdrawn by superior depending on the situation. The manager cannot delegate the authority which he himself does not possess. Also, he can not delegate his full authority to a subordinate. The delegation of authority may be oral or written and may be specific or general. The delegation is an art and must comply with a fundamental rules of an organization. ओके, वेरी गुड। यहाँ पे डेलीगेशन अथॉरिटी का फीचर्स क्या है? डेलीगेशंस मीन्स गिवन द पावर टू द सबऑर्डिनेट टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, जैसे हम लोग ऊपर पढ़ा, लास्ट टाइम भी पढ़े थे हम लोग ने, बट विद इन द लिमिट्स। पावर तो दिए गए हैं लेकिन लिमिट्स में पावर दिए गए हैं, प्रिस्क्राइब बाय द सुपीरियर। सुपीरियर जो पावर देगा उतना ही पावर आपके पास है। आप कंपनी के मालिक नहीं बन सकते हो। काम आपके हाथ में दिया मतलब आप कंपनी के मालिक नहीं बन गए, ऐसे नहीं। काम करना है, काम को किस तरीके से करना है वो आप डिसाइड करो, लेकिन उसके बियॉन्ड नहीं जाना है आपको, उसको पावर को गलत यूज नहीं करना है। ऑल्सो ही मस्ट कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, और वो पावर जो दिए गए हैं आपको वो ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही दिए गए हैं, उसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं है। Delegation does not mean that manager give up his authority, but certainly he shares some authority with the subordinate essential to complete the responsibility entrusted to him. Delegations का मतलब ये नहीं होता है कि मैनेजर अपना पूरा का पूरा अथॉरिटी दे देना है। मैनेजर कुछ अथॉरिटी देगा अपने सबऑर्डिनेट्स को ताकि वो अपने काम को पूरे तरीके से करके दिखाए, बस उतना ही अथॉरिटी देगा, उतना ही पावर देगा उनको। अथॉरिटी वंस डेलीगेट, एक बार अथॉरिटी देने के बाद कैन बी फर्दर एक्सपांडेड, उसको बढ़ा भी सकते हैं, और विड्रॉ, पावर ले भी सकते हैं। पावर दिया भी जा सकता है, पावर लिया भी जा सकता है, सुपीरियर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, सिचुएशन किस तरह का है। मैनेजर कैन नॉट डेलीगेट द अथॉरिटी विच हिमसेल्फ डज नॉट possess. Also he कैन नॉट डेलीगेट हिज फुल अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट। वो अपने सबऑर्डिनेट को पूरा का पूरा अथॉरिटी नहीं देगा, नहीं तू ही मैनेजर बन जा चल, ऐसा नहीं बोलेगा। उसको काम करने के लिए उतना ही अथॉरिटी देगा जितना काम कर सके वो, उससे ज्यादा कोई अथॉरिटी नहीं, उससे ज्यादा कोई पावर नहीं उसके पास। The delegation of authority may be oral, may be written, बोल के, may be लिखित, may be specific or general। Specific मतलब with certain terms and conditions, general मतलब no terms and conditions। The delegations of art and must comply with the all fundamental rules of organization। जो delegations power दी जाती है, जो authority दी जाती है, वो सभी rules and fundamental rules को देखा जाता है organizations में, किस तरह के policy है, किस तरह के situations है। तो ये है कुछ features of delegation of authority। आपके पास पावर तो है, लेकिन पावर है आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का, उसके बाद को प्रोजेक्ट के उसके अलावा आपके पास कोई पावर नहीं है। आप अपने प्रोजेक्ट को जिस तरह से चाहो उस तरह से कंप्लीट कर सकते हो बियॉन्ड द लिमिट, बट उसके अलावा आपके पास कोई पावर नहीं है। आप ना मैनेजर बन गए, आप ना कंपनी के ओनर बन गए, इसका ऐसा कोई पावर नहीं है। आपको ये भी नहीं बोला गया कि आपके पास पावर दिया तो आप करो मत करो, ऐसा नहीं है, आपको करना ही है वो चीज। अंडरस्टैंड फीचर्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। समझा आया तक आप लोग को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की फीचर्स? जैसे कि फॉर एग्जांपल डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का फीचर्स का एक बेस्ट एग्जांपल लेता हूं मैं। पीपीटी प्रेजेंटेशंस, आप लोग अभी पीपीटी प्रेजेंटेशन कर रहे हो, यस यू आर डूइंग द पीपीटी प्रेजेंटेशंस। आपको अथॉरिटी दी गई है कि नहीं दी है? मैंने आपको अथॉरिटी दिया है कि नहीं दिया? रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, यू हैव टू प्रेजेंट द पीपीटी। अथॉरिटी दिया है, आप अपने पीपीटी को कहीं से भी सिलेक्ट करो, टॉपिक को कहीं से भी यूज करो, इमेजेस वगैरह कुछ भी करो, लेकिन मुझे पीपीटी इफेक्टिव चाहिए। तो आपको मैंने अथॉरिटी दे दी गई है, पावर दे दिया गया है। अंडरस्टैंड? आपका काम है पीपीटी प्रेजेंट करना अच्छे तरीके से, आपके पास वो पावर है। अंडरस्टैंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब? ओके, यहाँ पे मैनेजमेंट होता है, जहाँ पे सुपीरियर होता है, वो अपने अथॉरिटीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देता ही है, उसके साथ अथॉरिटी भी दे देता है एम्प्लॉय को। उसके बदले में एम्प्लॉय क्या करता है? अकाउंटेबिलिटी, अपने काम का हिसाब दे देता है मैनेजमेंट को। प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, देयर इज 4 स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। पहला असाइनमेंट, दूसरा ट्रांसफर, तीसरा एक्सेप्टेंस, चौथा अकाउंटेबिलिटी। द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में 4 आता है, असाइनमेंट, ट्रांसफर, एक्सेप्टेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। स्टेज 1 असाइनमेंट, स्टेज 2 ट्रांसफर, स्टेज 3 acceptance, and stage 4 accountability. Anybody can read the first point
assignment of duties to the subordinate. देखो वेरी बेस्ट एग्जांपल, आप लोग को मैंने असाइनमेंट दिया है कि नहीं दिया है? कैन आई गिव यू ऑल एंड ईच एंड एवरीवन एज अ असाइनमेंट, एज अ पीपीटी? इनको दिया है मैंने। इसका मतलब क्या होता है? असाइनमेंट देना, टास्क देना किसी इंडिविजुअल को। हैव गिवन यू द टास्क, मैंने असाइनमेंट आपको दिया है। ट्रांसफर द अथॉरिटी टू परफॉर्म द ड्यूटी, मैंने क्या आपको अथॉरिटी ट्रांसफर किया है? आप अपने हिसाब से पीपीटी प्रेजेंट कर सकते हो। तो ट्रांसफर द अथॉरिटी फॉर द पीपीटी प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ असाइनमेंट, क्या आप लोग ने उसको एक्सेप्ट किया है विद अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ? क्या आप लोग उसको प्रेजेंट करोगे ऑन गिवन टाइम? Last point, to check the accountability, the process of delegation of authority and with the creation of the obligations on the part of subordinate to perform his responsibility within the power of assigned to him. जो मैंने आपको पावर दिया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आपने उसको काम करके पूरा दिया है अकाउंटेबिलिटी के साथ, मतलब आपने पूरी तरीके से उसको खत्म किया है। Once the assignment is accepted by subordinate, एक बार अगर आपने असाइनमेंट एक्सेप्ट कर लिया, then he become responsible for the completion of the duty and is accountable for the superior of his performance. एक बार अगर आपको मैंने असाइनमेंट दे दिया और आपने असाइनमेंट एक्सेप्ट कर लिया, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर उसको खत्म करके देना। यस और नो? चलो देख लेते हैं, आपको एग्जांपल भी बता देता हूं। ये है आपके क्लास का अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी असाइनमेंट्स। लिस्ट दे सकते हो आप लोग। दे आर द स्टूडेंट्स जिसको मैंने असाइनमेंट दिया था, दे आर एक्सेप्टिंग द असाइनमेंट्स। वो लोग ने प्रॉपर्ली जिन्होंने प्रेजेंट किया, दे आर वेरी गुड। उन्होंने प्रेजेंट किया, अपने अकाउंटेबिलिटी को पूरा किया, एक्सेप्टेंस जो किया था उनको गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंडर ही प्रेजेंट कर दिया, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने थोड़ा लेट प्रेजेंट किया, ठीक है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक उस अथॉरिटीज को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं किया है, जैसे कि रोल नंबर 21, देन रोल नंबर 2, रोल नंबर 12, रोल नंबर 6। इन लोग का टाइम पूरा हो गया था, तो इन लोग ने अपने एक्सेप्टेंस अथॉरिटीज को पूरे नहीं किए हैं अभी तक। तो इट शैल बी रिस्पॉन्सिबल और नॉट, ये अपने सब्जेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे कि नहीं होंगे? तो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। 4 प्रोसेस होते हैं। पहला असाइनमेंट गिवन टू द सबऑर्डिनेट, दूसरा ट्रांसफर द अथॉरिटी, तीसरा क्या होता है, थर्ड पॉइंट, फर्स्ट तो असाइनमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया ट्रांसफर ऑफ द अथॉरिटी, थर्ड पॉइंट क्या होता है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी। जो सबऑर्डिनेट होता है वो एक्सेप्ट करता है अपने दिए गए टास्क और असाइनमेंट को, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करता है। और लास्ट वन इज Accountability. they have to give the task, they have to complete their task within the given power of the subordinate, जो सुपीरियर ने पावर दिया है उस पावर के अकॉर्डिंग उसको अपना टास्क कंप्लीट करके देना है। इफ सबऑर्डिनेट एक्सेप्ट द टास्क, he should liable, he should responsible for his task. अंडरस्टैंड? यहां तक समझा आप लोग को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का फीचर्स एंड प्रोसेस? प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटी। प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटी कुछ है। रिजल्ट एक्सपेक्टेड, प्रायोरिटी, अटॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, यू नो द यूनिटी ऑफ कमांड as the Henry Fayol principle, absoluteness of responsibility, scalar principle मतलब top, middle, lower, expectation principles, functional definitions, ये सब principles है delegations of authority के। principle of functional definitions क्या है? जिसमें an organization is comprised of different functional departments। आप लोग ने functional department तो पढ़ा है, लास्ट टाइम में आप लोगों ने फंक्शनल डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ा है। डिपार्टमेंट बेस ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, पढ़ा ना सबके बारे में, एचआर डिपार्टमेंट।
उन सबके पास एक अथॉरिटी दी गई है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस और नो? लास्ट टाइम पढ़ा था ना हमने डिपार्टमेंटेशन के बारे में। बस बाकी लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो। Departmentations के according, an organization is comprised of different functional departments, each contributing to organization goal। हर एक डिपार्टमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को कंट्रीब्यूट करता है, मतलब उसको पूरा करने की कोशिश करता है। इन टर्न have their specific objectives, clearly defined objective of each department, expected result। हर एक डिपार्टमेंट से expected रिजल्ट एक्सपेक्ट किया जाता है कि कितना रिजल्ट वो दे सकता है। The specific activity to be performed and interdepartmental relationship helps the manager to determine the requirement of the specific positions। हर एक डिपार्टमेंट अपने काम को पूरी तरीके से करने की कोशिश करता है एज एक्सपेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन हमसे क्या चाहती है वो पूरा रिजल्ट एक्सपेक्ट करके, वो तो एक्सपेक्ट करेगी। आप लोग को डिपार्टमेंट डिवाइड किया तो एक्सपेक्ट करेगी कि उनको ये चीज चाहिए, वही चीज को पूरा करने को काम होता है ऑर्गेनाइजेशन, जो होता है डिपार्टमेंटेशन का काम होता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिजल्ट एक्सपेक्टेड। अभी जैसे कि मैंने टास्क असाइन कर दिया, मैंने दे दिया, असाइनमेंट दे दिया, आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं आप लोग से एक्सपेक्ट करूंगा कि नहीं, आई एम द ऑर्गेनाइजेशन, मैं एक कंपनी हूँ, मैंने आप लोग को टास्क दे दिया है, अथॉरिटी दे दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। अब मैं आप लोग से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप लोग उतना बेटर तरीके से परफॉर्म करके दिखाओगे अपने टारगेट को, अपने टास्क को। कैन आई एक्सपेक्ट? ये भी एक प्रिंसिपल है, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट करता है अपने रिजल्ट्स को गिवन दिए गए टास्क को। अंडरस्टैंड? Before the actually delegating authority subordinate, the manager must know the purpose of such delegation and result expect from it। जब भी कभी अथॉरिटी देने का काम होता है या टास्क देने का काम होता है, मैनेजर को पता होता है कि उसको क्या एक्सपेक्ट मिलेगा, तो पता रहता है, फिर भी वो रिजल्ट का वेट करता है कि कुछ और अच्छे से मिले। The goals, targets and standard performance must be clearly defined। goals, target, standard performance clearly defined होते हैं तो डायरेक्ट द एक्शंस ऑफ सबऑर्डिनेट, उनको किस तरह से काम करना है और किस तरह से पूरा करके रिक्वायर्ड करके पूरा टास्क करके कंप्लीट करना है। दिस प्रिंसिपल्स हेल्प इन डिटरमाइनिंग द अथॉरिटी टू डेलीगेट विच सफिशिएंट कंप्लीटिंग द रिस्पांसिबिलिटी। इससे पता चल जाता है कि कितने लोग को हमने जो टास्क दिया है वो कितने तरीके से रिजल्ट आ सकता है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टी और अथॉरिटी ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। द प्रिंसिपल स्टेट दैट responsibility and authority coexist। This means if the subordinate is assigned certain responsibility, अगर किसी subordinate को responsibility दे दी गई है, he must be given some level of authority। उसको कुछ power भी दे दिया जाए, the power to be perform his responsibility, जिससे वो अपने काम को और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। Thus both, अगर उसके पास दोनों चीजें आ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी भी आ गई, shall be clearly defined as subordinate so that no what he required to do within the power of delegation of him। तो उसको पता चलेगा, उसको पता रहेगा कि उसको अपने पावर का किस तरीके से इस्तेमाल करना है और किस तरह से काम दिए गए काम को पूरा करके देना है। दैट इज अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। यूनिटी ऑफ कमांड, यू नो द वेरी वेल अबाउट द यूनिटी ऑफ कमांड। दिस प्रिंसिपल्स ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा हुआ है। एवरी सबऑर्डिनेट शुड हैव द सिंगल सुपरवाइजर। हर एक सबऑर्डिनेट पे एक सिंगल सुपरवाइजर होता है। जैसे कि आप लोगों पे मैं एक सिंगल सुपरवाइजर, मेरे सब्जेक्ट के लिए आप लोग के ऊपर मैं, ठीक है। फ्रॉम whom he gets the authority, जिससे आपको अथॉरिटी मिलता है। to who he is solely accountable, जिससे आप लोगों को काम को पूरा करके देना रहता है। This means subordinate should get the instruction from the single superior and perform those responsibility as assigned by him। आप लोगों को काम को पूरा करके देते हो। That's unity of command, ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। Absoluteness and responsibility, yes, anybody can read this point, absolute and responsibility नहीं। Anyone read first? क्या हुआ, कोई भी नहीं पढ़ेगा? Read anyone first? सर मैं रीड करूँ?
बस रीड करो। Principle of absoluteness of responsibility. This principle asserts that responsibility cannot be delegated. This means even after delegating the authority to the subordinate to perform certain tasks on the manager's behalf, the manager will be solely responsible for the doings of the subordinates. In other words, whatever actions being taken by the subordinates, the manager will be accountable to his senior. Thus, the responsibility is absolute and remains with the superior. ओके, देखो प्रिंसिपल्स ऑफ एब्सोल्यूटनेस रिस्पांसिबिलिटी क्या होता है। एज पर द रीडिंग, दिस प्रिंसिपल्स assert, चेक करता है that responsibility cannot be delegated. This means even after delegating of authority the subordinate to perform certain tasks on the manager behalf, if the managers will be solely responsible for the doing of the subordinate. In other words, whatever actions being taken by the subordinate, the manager will accountable to his senior. His responsibility is absolute, remain with the superior. मतलब जो सुपीरियर ने अपने सबऑर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपीरियर को उसके भी सुपीरियर से सीनियर से मिला हुआ है। मतलब सीनियर के थ्रू, मतलब टॉप टू मिडल, मिडल टू लोअर। तो मिडल वाले ने लोअर वाले को दिया अथॉरिटी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, अथॉरिटी दिया काम को पूरा करने के लिए। उसी तरह से जो मिडल लेवल है उसको टॉप लेवल ने भी कुछ अथॉरिटी दी गई है, उसकी भी कुछ अथॉरिटी लिमिटेशंस है। तो वो काम का जो टास्क पूरा करके देगा लोअर लेवल, वो मिडिल लेवल को सबमिट करेगा, और मिडिल लेवल को इसको सबमिट करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने टॉप लेवल को सबमिट करेगा। दैट्स एब्सोल्युटली रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्केलर प्रिंसिपल, टॉप टू मिडिल, मिडिल टू लोअर। देयर आर क्लियर लाइंस ऑफ अथॉरिटी ऑफ डेलीगेशंस। हु इज अंडर हुम, कौन किसके अंडर है, विच हेल्प्स द सबऑर्डिनेट टू नो हु डेलीगेट्स, कौन हमको अथॉरिटी देगा और पावर देगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, एंड whom he shall be accountable, और किसको रिप्लाई किसको रिवर्ट करना है। अभी तुम मेरे प्रोजेक्ट को किसी और के सब्जेक्ट में प्रेजेंट कर सकते हो क्या? मेरे दिए गए पीपीटी को किसी और सब्जेक्ट में प्रेजेंट कर सकते हो क्या? ये होता है ना स्केलर चेन। आप लोग को पता है आपको किस सब्जेक्ट का असाइनमेंट मिला है, किस सब्जेक्ट का अकाउंटेबिलिटी मिला है, आपको उसको उसी सब्जेक्ट को आपको रिवर्ट करना है। मतलब किस अंडर कौन सा असाइनमेंट ले रहे हो, आपको उसी में रिवर्ट करना है वो काम पूरा करके। अंडरस्टैंड? ये होता है स्केलर प्रिंसिपल। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ exceptions. According to this principle, subordinate shall be given complete freedom to perform his responsibility under the purview of his authority. The manager should not interfere in the between his work. Manager interfere नहीं करेगा उसके काम में, and must allow him to do even if the commit mistake. और हाँ, इंटरफेयर तो नहीं करेगा, लेकिन कुछ मिस्टेक्स होगा तो उसको बताएगा कि ये गलत है, इसको सही करो। बट इन सम एक्सपेक्टेशनल केस मैनेजर कैन इंटरफेयर, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस में क्या होता है, मैनेजर कभी कभी इंटरफेयर करता है, नहीं ऐसा काम नहीं करने का, ऐसा काम करने का, तो इससे थोड़ा बुरा हो जाता है, एम्प्लॉय को थोड़ा हर्ट होता है। इवन द विथड्रॉवल अथॉरिटी डेलीगेट द सबऑर्डिनेट, कभी कभी उससे पावर भी ले लेते हैं कि तुम्हारे पास अभी ये पावर नहीं है, मत करो तुम ये काम। तो ऐसा भी कभी कभी होता है एक्सेप्शनल केस में कि दिए गए टास्क को वापस ले लेना, दिए गए काम में इंटरफेयर करना, ये सब मैनेजर कभी कभी करता है। अंडरस्टैंड? Yes, all of you reply fast. ये कुछ प्रिंसिपल्स थे हमारे। बैरियर्स, रुकावटें क्या हो सकती हैं? रिडक्टेंस मैनेजर और एग्जीक्यूटिव्स। कभी कभी क्या लगता है, मैनेजर को लगता है कि सबऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे, उससे बेहतर तो मैं ही कर पाऊंगा, ये मैनेजर का सोच होता है। इससे क्या होता है, कुछ रुकावट हो जाती है कि मैनेजर विश्वास नहीं करता अपने सबऑर्डिनेट पे कि वो क्या करेगा, वो नहीं कर पाएगा, मैं करके देता हूँ आपको काम। मैनेजर may believe that he can do his work better than his subordinate. Sometimes managers might believe that subordinates are not capable enough. जैसे कि मुझे लगता है ना, मैंने आप लोग को अथॉरिटी दिया है,
आप लोग उस काम को पूरा करोगे, लेकिन कभी कभी मुझे अनएक्सपेक्ट हो जाता है कि दिए गए काम को आप पूरा नहीं कर पा रहे हो या एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। जैसे कि मैं रोल नंबर किसी का पूछता हूँ तो वो स्पीकर पे ही नहीं आता है, या फिर वो कुछ और काम करता रहता है, रिप्लाई नहीं आता है प्रॉपरली। ठीक है, ये होता है। समटाइम मैनेजर माइट बिलीव दैट हिज सबऑर्डिनेट आर नॉट कैपेबल एनफ। कभी कभी मैनेजर को क्या लगता है, उसके जो सबऑर्डिनेट है वो एनफ मतलब उतने कैपेबल नहीं है उस काम को पूरा करने के लिए। तो ये मैनेजर मैनेजर का नेगेटिव है। जैसे मैनेजर सोच लेता है कि सबऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे, उससे अच्छा मैं कर पाऊंगा, तो ये मैनेजर का नेगेटिव पॉइंट है। फिर मैनेजर कभी कभी ये सोच लेता है कि इसको जो सबऑर्डिनेट है वो कैपेबल नहीं है उस काम को पूरा करने के लिए, ये भी सोच लेना मैनेजर का नेगेटिव पॉइंट है। डेलीगेशंस में रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ टाइम इन एक्सप्लेनिंग द टास्क। डेलीगेशंस में क्या होता है, बहुत सारा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि हर एक टास्क को एक्सप्लेन करना पड़ता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। Here the manager may not have the patience to explain। यहाँ पे मैनेजर के पास पेशेंस नहीं होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए एंड करेक्ट एनी मिस्टेक्स करने के लिए। इसके लिए कभी कभी प्रॉब्लम होता है डेलीगेशंस में। अभी आप लोग के पास, हर एक के पास मैंने पीपीटी दिया है, तो हर एक की पीपीटी को मैं एक्सप्लेन करने का मेरे पास उतना टाइम नहीं है। आपको दिया गया है, आप लोग प्रेजेंट करो, इतना अथॉरिटी आपके पास दी गई है। ठीक है, तो कभी कभी टाइम की वजह से मैनेजर जो होता है एक्सप्लेन नहीं कर पाता है प्रॉपरली टास्क को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ये भी प्रॉब्लम होती है। मैनेजर में लैक कॉन्फिडेंस, कभी कभी मैनेजर का कॉन्फिडेंस लैक होता है, ट्रस्ट में सबॉर्डिनेट, उनको भरोसा नहीं रहता अपने एम्प्लॉयज पे। सिंस द मैनेजर रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर सबॉर्डिनेट ही मे नॉट विलिंग टू टेक चांस विद द सबॉर्डिनेट। कोई सबॉर्डिनेट को चांस देने का जरूरत ही नहीं समझता है। सम मैनेजर्स लैक ऑफ एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर सबॉर्डिनेट। वो अपने, कभी कभी क्या होता है मैनेजर्स प्रॉपरली डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट नहीं कर पाते सबॉर्डिनेट को किस तरह से काम करना है। उनके पास वो एबिलिटी नहीं होती, बोलते ना, इससे अच्छा तो हम ही पढ़ा सकते हैं, इससे अच्छा तो हम ही काम कर सकते हैं। ऐसा आप लोग को पता रहेगा। अगर आपके फ्रेंड्स कोई पढ़ा रहा है, आपका फ्रेंड्स कोई पीपीटी दे रहा है, ठीक है, आप लोग क्या सोचते हो, यार इससे अच्छा तो मैं ही प्रेजेंटेशन कर सकता हूँ। ऐसे भी आपके अंदर आता है। तो मैनेजर कभी कभी एबिलिटी नहीं होती है वो अपने सबऑर्डिनेट को प्रॉपर गाइड कर सके। तो ये कुछ बैरियर्स है मैनेजर के लेवल पे। सबऑर्डिनेट के लेवल पे क्या गाइडेंस, सबऑर्डिनेट के लेवल पे क्या प्रॉब्लम होता है। सबऑर्डिनेट में लैक कॉन्फिडेंस, आप लोग के अंदर मेरे को बोलना पड़ता है, कॉन्फिडेंस जगाना पड़ता है, भाई मोटिवेट हो, काम करो, ये करो वो करो, इंप्रूवमेंट करो अपने आप में। फिर जाके एक दो कोई उठता है, फिर दिखाई देता है, बोलना पड़ता है, हर एक ईच एंड एवरी टाइम आपको बोलना पड़ता है। तो आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है कभी कभी बहुत कम होता है। आप किसी काम को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, हमेशा ना बोलते हो, नो सर नहीं हो पाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो ना बोलते हैं, बाकी लोग, मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स मैंने देखा है हाँ बोलेंगे आप लोग। सबॉर्डिनेट में रिलुक्टेंट एक्सेप्ट अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस फॉर फियर। डर लगता है उनको कि यार हमने काम ले लिया तो हमको करना पड़ेगा, गलत हो गया तो फिर सुनना पड़ेगा वगैरह वगैरह। ठीक है, मिस्टेक्स बहुत सारा होगा, रॉन्ग डिसीजन हो जाएगा, इसलिए कभी कभी लोग सामने से डिसीजन नहीं लेते हैं। सबॉर्डिनेट में नॉट बी मोटिवेटेड टू एक्सेप्ट एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, एक काम ले लिया तो दूसरा काम, सर हमारे पास ऑलरेडी वो काम पड़ा हुआ है, इसका असाइनमेंट उसका असाइनमेंट पड़ा हुआ है, प्लीज आपका असाइनमेंट मत दो हमको, ऐसा बोलते हो ना आप लोग, दूसरा काम लेने से मना कर देते कभी कभी। इन केस ऑफ एडुकेट इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस में नॉट बी अवेलेबल, कभी कभी रिसोर्सेस नहीं होता है, तो सबऑर्डिनेट अपने काम को, अपने डिसीजंस को प्रॉपरली तरीके से नहीं ले पाते हैं। दे फाइंड इट इजियर टू आस्क देयर सुपीरियर। वो काम पूरा करने से बजाय क्या करते हैं, अपने सुपीरियर से पूछेंगे, सर आप ही बता दो कैसे सॉल्व करना है, आप ही बता दो कैसे काम करना है। होता है ना, हुआ है ना सिचुएशन आपके साथ ये सब। यही है आपका डेलीगेशन एंड अथॉरिटी। अंडरस्टैंड, कुछ समझा। बैरियर्स, मैनेजर के लेवल पे बैरियर्स क्या होता है और सबऑर्डिनेट के लेवल पे बैरियर्स क्या होता है। अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीवन। आता कोई डाउट।